Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम गाजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं। बहुत ज्यादा बातें करनी है बेराम। सबसे पहले तो तुमने बर्थडे भी विश करनी है किसी को। A very very happy birthday to Mahir. He's turning 12. हमजा खालिद को जानते हो ना? हमारा long time viewer. His little cousin है। All right, happy birthday Mahir. Happy birthday Mahir. And वैसे तो यार साद और मैंने रिव्यू करना है इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच। हम अभी वहां पे नहीं आ रहे। We don't care about that because Wian Mulder is currently unbeaten on 325. मजे की बात ये है बेराम, तुम बताओ कैसे हो? बड़ी बातें कर रहे थे। I remember Sadi, there was a show that we were recording और मैंने उसी के अंदर कोई बात की है वियान मल्डर को and when we finished recording I checked Cricinfo and he had scored 147. Yes. ठीक है, this was the previous test match where he scored 147 as a false number 3. False number 3. कैम ग्रीन को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए। ये होता है फॉल्स नंबर 3। थोड़ी शर्म तो खानी चाहिए यार। वो 147 तो पुरानी बात हो गई है, ठीक है, बिकॉज ही हैज जस्ट गॉन ऑन टू स्कोर अ फॉल्स नंबर 300। अभी तो खेल रहा है। हाँ, ये तो एक और चौका मार दिया। चलो जी। ये बाय द वे क्रिकइन्फो खुला रहेगा जब तक मल्डर आउट नहीं होता एंड इट विल बी रियली हार्ड टू फोकस ऑन द एक्चुअल पॉडकास्ट बिकॉज़ ही हैज जस्ट लेवल्ड इंजी 329। ऑलराइट, ही सारे रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के तो तोड़ दिए। he is the highest scorer, individual run scorer for South Africa in a test innings already. आमला का था 311 Not out. हाँ, Yeah. he surpassed that. Yeah. Number 3 पे he surpassed Yunus, Sangha and everyone. Yep. अभी Not everyone, है कुछ लोग। 3-4 है आगे। सोबर्स है आगे, लारा है आगे। लारा 2 दफा है वो। Yep. और पता नहीं क्या कर रहा है ब्रो। Boy has gone insane. First test match as captain. Yes. हाईएस्ट स्कोर उसका भी बना दिया। So basically that's another record. No cricketer has scored more runs in a single innings in their first test as captain. Yes. Mulder is now currently unbeaten on 330. तो Inzi को भी overtake कर गया. And you know, Sadi, we've seen a lot of weird shit go down in test cricket in recent times. I don't think anything tops this. Nothing tops. Wian Mulder scoring a triple hundred at that false number 3 batting position tops the charts. He's the second fastest triple centurion in Test history after Virendra Sehwag. सिर्फ वीरू से पीछे. He got his triple in 297 deliveries. Yeah. I think Sehwag got there in 278 balls. Yeah. And you know, he doesn't have any reason to declare. So Brian Lara is probably sweating somewhere in Trinidad right now. Port of Spain. यार मैं ऐसे कह रहा था यार, नहीं नहीं मल्डर ना तोड़े यार। मैं तो कहता हूँ ब्रेक क्रिकेट right here right now. नहीं आई वांट कोई प्रॉपर बैटर तोड़े यार। ये क्या सीन है? वाकई bro, like it is incredible, unfathomable almost that Wian Mulder is currently unbeaten on 330. मतलब कि यार we have taken the absolute piss out of him. ठीक है? And the false number 3 batting position. He has. I have. And the false number 3 batting position. We both disagree with it in theory. I don't know. Yeah. We saw it with Jacob Bethel, we've seen it with Cam Green, and now Mulder has taken it to another level. Mulder ने बोला ये होता है bro। जो भी हो यार, Zimbabwe हो, जो फ्लैट ट्रैक हो, जो बाकी किसी ने तो नहीं मारा ना। किसी ने 100 भी नहीं मारा। वो 330 पे पहुंचा हुआ है यार। It's just fucking ridiculous. I don't have words for it, man. Like everything else is secondary right now. We are on Wian watch. Yes sir. अच्छा, anyway, आगे चलते हैं इंडिया की तरफ यार। A dominant victory for India over England for the very first time in Edgbaston. Edgbaston में आज तक जीते नहीं हुए थे। No Asian side. Yes sir. No Asian side had ever beaten England in खा Edgbaston. गए, खत्म। उड़ा दिया यार। They won by a colossal margin of 336 runs. And the biggest thing of note over here is that India initially lost a Bumrah test. Yes. And now they have won a non-Bumrah test. They have leveled the series 1-1 with 3 test matches to go. They now know what their best 11 would look like in the games coming up. And it really is, you know, outstanding. I mean, Prasid goes out and Bumrah comes in. Has to be. It's painstakingly obvious. अब तुमसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि who takes the new ball? Do you take the new ball away from Akashdeep after this performance? Probably Siraj first change. Really? No. Maybe Bumrah first change. No. कोई समझ नहीं आ रही। नहीं, you can't put Bumrah first change. Yeah. Also, there were wholesale changes by India for this test match. England were unchanged. Yes, England were unchanged, but I thought that India should have gone with Arshdeep. हाँ, Arshdeep and Kuldeep as well. Akash को मैं खिलाता प्रासिद की जगह. That didn't quite turn out. They had Karun Nair batting at first drop. They replaced Sai Sudarshan with Nitish Kumar Reddy. ठीक है. And then of course नीचे Shardul चला गया and Washington came in for him. And obviously Bumrah was out, so Akashdeep came. But man, I mean, initially I thought that someone needs to go and talk to Gambhir that you cannot win test matches by not taking 20 wickets. By not taking 20 wickets, you don't set yourself up for success when you overload your batting
and don't have enough bowling options, but they didn't need a lot of bowling options. Like Siraj and Akashdeep, they shared 17 wickets amongst each other. Ran through out of 20. So they didn't really need that, but in hindsight, not in hindsight actually, pre-hindsight, you'd have to say that was a bit of a defensive move. It is a defensive move, and I still feel इस टेस्ट मैच में चल गई, हर टेस्ट मैच में नहीं चलेगी. हाँ बिल्कुल. अब और स्पेशली इस तरह की फ्लैट ट्रैक्स पे ना मुझे लगता है कि आपको थोड़े बॉलर ज्यादा चाहिए होते हैं. बिल्कुल. वर्कड आउट इन देयर फेवर ब्रिलियंटली. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा. बाय द वे, वियान मल्डर हैज जस्ट क्रॉस्ड द डॉन. डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ के he is 336 not out now. Damn. This is going to be a Vian Mulder podcast. और बीच में इंडिया की बातें होंगी. यार, yes, I feel like I personally would have played Kuldeep ahead of Washington. अगर आपने second spinner खिलाना ही है, play the better one. But then again, Washington का बड़ा crucial वो नॉक भी आ गया बीच में. ठीक है, सही है. मुझे बात में तुम्हारी वजन नजर आता है. हाइंडसाइट में बात है ना, लेकिन उससे पहले मैं भी ये प्री हाइंडसाइट बात है. नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन चल गया वो हाइंडसाइट की बात है. Yes. वरना मैं भी ऑब्वियसली कुलदीप को खिलाता है और आई स्टिल फील कुलदीप को खिलाना चाहिए था. Yes. और you could have just kept the faith in Sai, man. एक मैच के बाद ऐसा निकाल देना मेरी नजर में ठीक नहीं. करण could have just batted at 6, you know. वो नीतीश कुमार रेड्डी को मत खिलाते, उसे किए भी 2 रन ओवर से ही थे उसके शायद. कितने को कराए होंगे? नहीं करवाए. 5-6 ओवर कराए होंगे टोटल. नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना. He barely bowled and he only scored 2 runs on aggregate. But ultimately, you know, these things will not be spoken of as much anymore because India have won. Gautam Gambhir will be a happy chappy. But isn't it good कि अगर आप इस मोमेंट में भी ये वाली चीजें हाईलाइट करो कि नहीं यार यहाँ पे आप मिस कर रहे थे, ये भी कर सकते हो. That's what you should do. And everyone I knew was critical of India. ऐसी बात नहीं थी कि it was a polarizing decision. लेकिन चेक करो ना, उसके बावजूद 336 रन्स की विक्ट्री यार. That's massive. पड़खच्चर्स और आए पड़खचियां. अच्छा, डिटेल्स में जाने से पहले आ जाए, इंग्लैंड टॉस जीत गया. हाँ, so Stokesy loves to chase. We know that, and that's why he elected to field after winning the toss. अब बाद में वही आकर कह रहा है कि oh, these were subcontinent conditions. That's ridiculous. And, you know, maybe we should have, you know, halfway through the first innings or whatever, we were thinking we should have probably batted. यार, आपकी conditions थी, आपने बाउंड्री अंदर खींची हुई है. ठीक है, you wanted to assist Bazball or that style of play, so you brought in the boundaries considerably. You should focus on your team कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. अगर आप लोगों का डिसीजन था इस तरह की पिच होनी चाहिए, ये बाउंड्री डायमेंशंस होनी चाहिए, उसके बाद अपनी बॉलिंग भी देखो. Yes. I believe, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बेहतर बॉलिंग है यार वाकई. मतलब इंग्लैंड Pakistan's dog shit in currently given that India have lost Bumrah test and won a non-Bumrah test, और वो जो lost भी किया है वो भी जीतना चाहिए था बेशक. उसको मद्देनजर रखते हुए I feel like India are favorites to win the series unless England's bowling attack can show me some bite. Sorry, Gus Atkinson आ गया स्क्वाड में. Gus is in. जोफ्रा पता नहीं, I think दोनों को एक मैच खिलाओ. हाँ, I don't know लॉर्ड्स पे खेलेगा जोफ्रा के नहीं खेलेगा, मगर गस तो मेरे ख्याल से फौरन ही आ जाएगा और टंग की जगह आ जाए. And yeah, I mean वही कार्स and tongue में से pick your poison. They're very similar. टंग की जगह tongue is a bit more effective at wiping out the tail. हालांकि यहाँ पे तो ये 20 विकेटें भी नहीं ले पाए. कुछ भी नहीं किया. 16 wickets in total, right? England's best bowler in this game was Shoaib Bashir on numbers. I think Vokes was probably better than him वैसे अगर देखो तो, मगर if you look at the numbers, Bash was their most successful bowler, taking 5 wickets out of 16 on aggregate, right? और उसका breakdown अगर मैं आपको बताऊँ ना, you'll be like, what the fuck are you saying, man? बताओ breakdown. 3 for 167 in 45 overs. And 2 for 119 in 26 overs. So that is what 71 overs bowled. ठीक है? That is what nearly 300 runs. Nearly 300 runs. 298 runs and 5 wickets. Shoaib Bashir is averaging a smidgen under 40 with the ball in Test cricket. He has played a lot. I'm not even joking. I feel that I could survive an over of Shoaib Bashir. Survive an over? मैं चौका मार दूं. चौका तो लग ही चौका लग जाएगा Shoaib Bashir को, ठीक है? लेकिन पता है, I'm not trying to take the absolute piss out of him just because, you know, but we will. देखो, he just does not look like he is international standard, and he doesn't even make it into his first team in county cricket. But the only good thing about Shoaib Bashir is he has age on his side. He's 21. So that will probably help him going forward. By the way, 338 not out हो गए अब. Vian Mulder. अच्छा 350 क्रॉस करे तब पता ही. So वही बात है यार. If the scorecard suggests that Shoaib Bashir was your most successful bowler, then things aren't good. ठीक है, that is a major cause for concern. Ben Stokes was their best bowler in the previous match. लेकिन मैं बैश पे बात करना चाह रहा हूँ.
पंत को कोई स्पेशल खार है बैश से ब्रो। जब भी बैश आता है ना, अब 2 दफा आउट कर गया उसे, लेकिन जो कुट पड़ी है ना उसे इन 2 टेस्ट मैचेस में, पंत आता है और उड़ाता है। आई थिंक उसको कोई वो देयर इज अ टिक कि यार नहीं, आई कैंट जस्ट नॉक दिस गाय ये क्या है? आई हैव टू टेक हिम टू द क्लीनर्स। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। वो फॉलिंग ओवर एंड स्कूपिंग द बॉल हर जगह ब्रो, हर जगह मारा उसे। बैट उड़ते हुए जा रहे हैं ऋषभ पंत के भाई, 2 दफा तो बैट उड़ते हुए गए, 2 चौके मार दिए, 346 350 क्रॉस करे तब पता ही ब्रो, यहाँ पे सारा हमारा मोमेंटम लूज हो जाएगा। fucking crazy man, this is crazy, this is insane, this is crazy, fathom ही नहीं हो पा रहा। अच्छा anyway, so obviously unless and until something changes with England's bowling, I don't think they have a shot. यार सैम कुक को लेकर भी आ सकते हैं बाय द वे, लॉर्ड्स में तो आ लेकिन मुझे लगता है गस की जरूरत है, गस की जरूरत है, they need some pace. So let's go Gus for one of Cars and Tongue. And then you could potentially bring in a Sam Cook, but then do you replace the other guy as well? Cars और Tongue दोनों को निकाल दो फिर। वोक्स भी है, वोक्स यार वोक्स की बैटिंग चाहिए इनको। किया उसने भी इस टेस्ट मैच में तो कुछ नहीं किया। Pretty awful. But you would at least assume that Chris Wokes would do well at Lords. Assumption ही है। वो आगे खड़े हो जाते हैं ना। You look at all these Indian batters and they're standing outside their crease. You need Gus for that. Ideally a fit Jofra Archer or a Mark Wood would have been nice. अब वो तो एक्सप्रेस पेस पे तुम ले गए हो ना बात। Obviously that is true. But Gus hits 140 plus यार। Stokes was hitting 140 plus. Like Cars and Tongue hit 140 plus. Gus rushes up batters. My argument is that 140 plus वाले तो फिर भी हैं, वो 150 वाला एलिमेंट वो है ही नहीं, अब क्या करे। हाँ वो इंडिया के पास कौन सा था? हाँ इंडिया के पास भी नहीं था। They were just better bowlers. That's true. Yeah. So that's I think the biggest thing that England need to figure out over here. और भी चीजें हैं, Crawley, Pope. बेचारा बेन डकेट यार, आफ्टर दैट वर्ल्डी ऑफ अ टेस्ट मैच ही बैग्ड अ पेयर। नहीं didn't bag a pair. He didn't bag a pair? नहीं सेकंड इनिंग्स में मारे ना। अच्छा क्या 12-13 रन मारे? पेयर नहीं था। अच्छा सही है। Zach Crawley though, he needs to go out bro. Does he? He does bro. I mean he does. इस सीरीज के बाद ही करा दो, लेकिन find someone else bro. I mean वो नहीं कर सकता। I think no batter who has scored over 2500 runs in Test cricket has a lower average. नहीं कर सकता bro. नहीं, he doesn't have it in him. Yeah, कैच भी ड्रॉप किया, बड़ा fairly easy कैच पंत का। I don't think Crawley's वाकई needs to go. Yeah, I mean he's crawled his way here. पता नहीं कैसे इतने ज्यादा टेस्ट मैच खेल जाते हैं यार, वो क्योंकि वो उसको इम्पैक्ट के लिए खिलाते हैं। It's not like he hasn't been successful. बीच में हो गया था successful. बीच में मतलब inconsistent तो है ना। हाँ, but there was a time in between where Zach Crawley was getting these 40s. क्या करना 40s का यार, क्या हो गया यार तेरा? वहाँ पे 350 पे खेल रहा है मल्टर। 346 नॉट आउट। एक ही बात है, ठीक है, और तुम 40s की बात कर रहे हो आज नहीं। Crawley needs to go out. Yes, I don't think he'll go out in the next test, but it is a conversation worth happening. And Ollie Pope भी यार, ever since that ton, he's done nothing. और यही सीन है ना, that's why we pointed out his median score, which is like 50% of the times he's scoring what 16.5 runs back then. अब शायद थोड़े कम हो गए या ज्यादा हो गए, I don't know. But the point is that there are too many failures, and then every time he crosses 37 he averages like 80 odd. ऐसा कोई इसका रिकॉर्ड है। अच्छा खैर, इनका एक और बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि जो रूट isn't firing. Yeah. तो अगर आपका क्रॉली और पोप हो टॉप 3 में, और उसके बाद जो रूट जिसके ऊपर आप सब कुछ रिलाय करते हो अपनी बैटिंग यूनिट, वो ना फायर कर रहा हो, तो फिर यही होता है। नहीं, फिर तो मसलूसेस होंगे, होंगे ना। और कंपैरिजन करो उधर नंबर 4 पे, ओ भाई उधर आते हैं तो फिर तो उफ, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। शुभमन गिलकाटी पे मैं आराम से टाइम लगाऊंगा अपना। अभिवानी आया, अभी तुम मल्टर पे देखे जा रहे हो। अभी तो मैं मल्टर पे देखे जा रहा हूं, मगर आई वांट टू टॉक अबाउट बेन स्टोक्स अ बिट। एक तो ही हैज बीन फेलिंग, ठीक है, विद द बैट, या कंसिस्टेंटली ही हैजंट एवरेज्ड अ लॉट इन रीसेंट टाइम्स। सही है, ऊपर से वर्सेस स्पिन ही हैज वेरी एविडेंट वीकनेसेस। सही है, ही लुक्स प्रीटी डॉजी वर्सेस स्पिन। और तीसरी चीज ये यार कि दिस होल सोर लूजर एटीट्यूड, it looked like a subcontinent pitch. यार आपने ही बाउंड्रीज अंदर खींची हुई है, at least 10 meters. I'm not even joking. I've watched a game at Edgbaston. नहीं, बहुत आगे थी ब्रो। मैं देखा हुआ वहाँ पे मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बोले आके पूरा उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट के ऊपर कि इतनी ज्यादा अंदर खींची। क्लियरली आप ये चाह रहे हो कि हम बेसबॉल की स्टाइल से खेलेंगे, हमारे छक्के लगेंगे। और फिर अगर दूसरी टीम आके आपको बेसबॉल कर देती है तो फिर रोने की बात नहीं है ना। एब्सोल्युटली। ऊपर से यार एक और ये चीज देखिए आप कि ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज हैज प्लेड अ रोल इन इंग्लिश डेक्स गेटिंग फ्लैट, but then again they probably asked for it. क्योंकि इनके स्टाइल को सूट करता है, they back themselves as a team which can chase. किसी ने लिखा हुआ था, which was a very interesting point on Twitter, मुझे याद नहीं है किसने लिखा हुआ था, so sorry on that. There's a reason they asked Jimmy to retire,
क्योंकि जिमी इन पिचेस के खिलाफ बोलता फिर। ये भी हो सकता है। हाँ। That's very very true actually. Yeah. Yeah, and they're like नहीं यार जिमी जो है वो तो उसको हम खत्म कर देंगे इस तरह की सर्विसेज पे। वो टूट जाएगा। हो सकता है यही प्लान हो ब्रो, because शायद। of course I understand the global warming bit. But then again, आप कुछ ना कुछ डिफरेंट तो कर ही सकते हो। आप फ्लैट ट्रैक्स पे जा रहे हो, आपकी यही है मेंटालिटी फिर के यही करेंगे हम, यही गेम प्लान है। This was a very interesting flat deck because the new ball was doing Yeah, things. it was, yeah. Even for England. Yeah. वो तो साइकट भाई ने Yeah. he didn't raise his finger too Yeah. much. India got a bit lucky. वो अंपायर्स कॉल पे 2 LBWs हो I गए mean, थे नायर और जायसवाल के, but that doesn't mean कोई ज्यादती हुई है। नायर वाला जो है ना 50-50 हाँ, calls थी। नायर वाला जो है ना वो थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट है मेरे जहन में, क्योंकि क्रिस वोक्स ने भी ये बोला वंस द बैटर इज लीविंग 350 This is crazy. 50 रन This is रहेंगे fucking अल्लाह। crazy, man. अच्छा जब बैटर लीव कर रहा है बॉल तब फिर अंपायर्स कॉल नहीं होने चाहिए, ये क्रिस वोक्स का कहना है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? Yeah, obviously these things need to be discussed at some sort of table in the ICC, but I see a bit of merit in that. Offer नहीं कर रहा शॉट, क्लिप भी कर रही है तो जाने दे। मगर पता है इसमें मसला क्या है? जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्लिपिंग का वो क्या कहते हैं, it gives you that little leeway because that is the margin for error within the technology. Yeah. So how do you know it would have been clipping? Yeah. समझ रहे हो तुम? इसीलिए तो अंपायर्स कॉल आती है। Exactly. So that is where it gets a bit iffy and I don't think फिर क्या ही कर सकते हो? आपकी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस है सारी। मगर मुझे एक चीज समझाओ, जो इम्पैक्ट होता है उस पे केडी एम्पायर्स कॉल है यार, वो तो हो गया। नहीं वो तो उस पे वैसे ही projection रेड, नहीं हुआ। वो तो वैसे ही रेड था। नहीं मैं वैसी बात कर रहा हूँ तुमसे। We see many a times where the impact on the pads is deemed as umpire's call. That's something I don't get, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोजेक्शन नहीं है, ये तो हो गया है। नहीं प्रोजेक्शन ही है ना, 5-10 जो भी परसेंट है वो इधर हो सकती है इधर हो सकती है, तो अंपायर्स कॉल है। पता नहीं, I feel like you can really get to the bones of that. I don't know the limitation. नहीं of the technology अगर क्लिपिंग पे नहीं जा सकते हो आप, नहीं, अगर वो तो क्योंकि that is a projection. You are expecting the ball to go there. This is the I ball. understand your point. Impact कर गई। वो तो एग्जैक्ट आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे लगी है। Exactly. Yeah. So उस पे मुझे कोई बता दे, एक्सपर्ट अगर यहाँ बैठा हुआ है, if you can explain that. अब वो अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल्स ही होगा ना कि यार इतने उस पे है तो एम्पायर्स कॉल दे दो, इस पे फिर रेड, व्हिच डजंट मेक सेंस। और जहां पे सब फ्लैट डेक करे, और मैंने खुद इसको रावल बैस्टन बोला था बीच में, बिकॉज एजेस तो थी नहीं। फिर इंडिया आई तो एजेस निकल आए, सही है। एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ सिराज एंड आकाशदीप विद द न्यू बॉल। इट वाज अ बिट ऑफ अ न्यू बॉल विकेट एट टाइम्स, इसमें कोई शक नहीं है। एंड इंग्लैंड दे कुड हैव हैड अ मोर फ्रूटफुल फर्स्ट सेशन इन द टेस्ट मैच। थिंग्स डिडंट गो देयर वे, दैट डिडंट टर्न आउट टू बी द केस, बट देन अगेन आउट एंड आउट फ्लैट डेक नहीं कह सकते, बिकॉज आकाशदीप गज बॉल अंदर ला रहा था। दोस वर लाइक फ्रिगन फास्ट ऑफ स्पिन बॉल्स। जो ब्रोक को उसने किया एलबी दोनों दफा बोल्ड भी जो किया वो ठप्पा खाई और जैक बैक इन, nip backers out of hell, basically. Crazy. So you have to give those guys credit for really exploiting the new ball well. जहां पे इंग्लैंड से वो चीज नहीं हो सकती। नहीं हुई। And Chris Wokes was really unlucky. एंड और बात यहीं पे आती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिटी इन इंग्लैंड्स बॉलिंग। Yeah. कर सकते, अगर इंडिया कर रही है उसी पिच पे वही चीज तो आपके बॉलर्स नहीं कर पा रहे, तो क्या डिफरेंस I kid you not, when England are bowling, I'm often left wondering to myself, where is the next wicket coming from? क्या right? कर रहे हो? कहां से आएगी अगली विकेट? और फिर बैश आ जाता है। और मैं कहता हूं यार बशीर तो सिर्फ एक तरीके से आउट कर सकता है, बैटर गलती करे। यार मैं हाँ ना, यही है ना यार। जो कि हुआ यही है। हाँ हुआ तो यही है, वो 5 विकेट उसको इस तरह मैं मिली। मजाक भी नहीं कर रहा, थोड़े रूट को ज्यादा ओवर दे दिया करो, वाकई वो बेहतर है शायद। हाँ मतलब रूट एटलीस्ट बोल्ड पिच। अब देख लेना, देयर वाज अ रिपर दैट ही बोल्ड। हाँ अब देख लेना बैश ने अगले मैच में जो करना है, जो मल्टर ने इस मैच में किया है ना, बैश वो लाएगा। मुझे लगता है बेथल आ जाएगा बैश की जगह। मुझे नहीं लगता। अच्छा हाँ ले आना चाहिए यार, he is ले young. आना चाहिए। Sure, he is very young, 21 कोई उम्र नहीं होती। He has been fast tracked, उसकी गलती नहीं है वो। He wasn't even made to prove his credentials in county cricket. वो तो they were just बैज एंड स्टोक्स का काम है। they had a hard on for his release point. Let's be real, ठीक है? It was a quick whiz decision. नहीं तो फिर डोंट यू थिंक टॉम हार्टली वुड हैव बीन गुड एज वेल, मतलब गुड तो नहीं लेकिन समथिंग सिमिलर एज वेल। मतलब स्पेशलिस्ट है ना यार, ये हार्टली बैटिंग भी कर लेता है। There are a few things over there that need to be thought of. लेकिन हार्टली का भी रिलीज पॉइंट तो बहुत ऊपर था, इसीलिए वो इंडिया लेके गए थे। Yes, उससे यही that's रीजन true. था। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब वो खैर उन पे आते हैं। यार जैक लीच is still around. I mean, इंडिया पे आ जा ब्रो, आ जाए इंडिया। नहीं जैक लीच नहीं ब्रो, जैक लीच नहीं, he's too old. He wasn't too impressive in आई Pakistan. मैं तो कहता हूँ लियम डॉसन को ले आओ यार हाँ, डॉसी बेचारे के साथ काफी ज्यादा हुई है, वो भी बैटिंग कर रहा है बाय द वे। इंग्लैंड में डेथ ऑफ स्पिनर्स तो है, इट्स नॉट लाइक दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, बट बैश से बेहतर ही ऑप्शंस है। पेसर्स भी यही है। अच्छा बैश कुछ एंगल्स है ना, कभी कभार ईशांत शर्मा भी लगता है। अच्छा हाँ थोड़ा सा सीन है उसका उधर। अब तो बॉय ने फुल जेन जी, मैं कुछ और बोले जेन जी हेयर कट करवा के, किस किस्म का हेयर कट है वो, बट इट्स इंटरेस्टिंग। दाढ़ी रख के
खैर हम बैच पे क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मल्डर से निकलो और इंडिया पे आओ। मल्डर 351 पे बाय द वे। इंडिया पे आ जाओ ब्रो। आ जाए, कहां से शुरू करना चाहोगे, क्योंकि लोग तो बहुत है बात करने में। मुझे लगता है टॉप डाउन चलते हैं ना। अच्छा, हाँ। बट लेट्स आई थॉट मे बी इट मेक्स मोर सेंस टू डिस्कस द बॉलर्स फर्स्ट। चलो बॉलर्स पे आ जाओ। एंड लेट्स टॉक अबाउट आकाशदीप। वाओ, He could have had it all. impressive bro. Rolling in the deep. Yeah, first time he ever gets a 5 for in Test cricket, it's this game. First time he gets a 10 for in Test cricket, it's this game. 4 for 88 and 6 for 99. Yeah. Okay, that comes out to 10 for 187. It's crazy. What a Test match for Akash, man. Or what a revelation he has been for India. Replacing Bumrah is no joke, bro. No joke, और ऊपर से यार taking the new ball. हाँ. I was a bit iffy on that. I was asking Varun and Shayan कि इसको आती है नई बॉल से बॉलिंग कराने की, मुझे नहीं पता. Clearly आती है उसको. Clearly. ठीक है? अच्छा वैसे by the way मुझे भी आकाशदीप का ज्यादा नहीं पता था. यार इतना कोई तेज नहीं है, हाँ. ठीक है. He is 85 miles per hour, 84 इस तरह कराता है. कभी कभार बीच पे थोड़ा सा तेज हो जाएगा, but generally he is not as quick. But dude, his lines were accurate and he can get the ball to seam off the deck, bro. Movement of the seam was crazy. Insane. He really made the most of the new ball. हाँ. और पता है जब न्यू बॉल के बाद उसको स्पेल्स मिले ना, उतना इंप्रेसिव नहीं नजर आया, मगर उसने कैश इन कर लिया when the conditions were suiting him. हाँ. And I am in awe. And some poor batting by England too. Yes, ये भी definitely कहना poor पड़ेगा. batting as well. They were अब आपको पता है ball is doing a bit. हाँ. आपने खुद देखा था कि आपके टाइम पे भी न्यू बॉल was doing a bit. यार आप थोड़ा survive कर लो, leave कर लो थोड़ी ज्यादा जिस बॉल. तरह पिछले मैच में सेकंड इनिंग्स में किया था शुरू में. Yeah. So I mean, whilst England batted poorly, you have to give credit to Akash. It's a very sad story actually. Lost his dad and brother to COVID. His sister currently has cancer. Yeah. He revealed that in the post-match interview, Yeah. or he dedicated this win to her. शरीफ आदमी लगता है. You know वो जो मेहनत करके पहुंचा है ना, नजर आ रहा है. He has that hustler look on him. And I was really, really happy for him. And I think India के लिए उसने बहुत आसानी पैदा कर दी है, because now you think of a bowling attack, a pace bowling attack of Siraj, Akashdeep and Bumrah at Lords. Yeah. And you'd have to say just based on that alone, India might be favorites. हाँ. You know? मतलब in comparison to England for sure. Yeah. For sure. और पता है, some of those balls that came back in, that was prodigious. ठीक है, जिस तरह वो ball अंदर आई है ना, I mean, I was like, damn, this guy can bowl. कमाल. Brilliant. Yeah, amazing. और फिर मियां मैजिक. और साथ मियां मैजिक हो गया ब्रो. Yeah. ये क्या सीन है यार? मुझे बताओ. कई दफा हमने बात डिस्कस की. मुझे बताओ, जब बुमराह नहीं खेल रहा होता, हाँ, तो सिराज को क्या हो जाता? I think when Bumrah plays, he's averaging around 35, 36 with the ball. And when he doesn't play, he's averaging like 26, 27, something like that. क्या? We saw this at the Gabba. अगर तुम्हें याद है मुझे. And when Bumrah is unavailable, Siraj, when he is the leader of an attack, he goes insane. ये क्या? क्यों? I've always maintained that he's a rhythm bowler. When he's hot, he can destroy you. Yeah. And that's what he did. 6 for 70 in the first innings. फिर बाद में 1 for 57 was under bowled a bit as well. मगर 6 for 70 ने completely derail कर दिया था. And शुरू में आकर wickets ली. Both him and Akashdeep were on a hat trick. Yes. Right in that first innings. And then he wiped out the tail like anything. Yeah. लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि ये कैसे हो सकता है. क्या चीज? मतलब अगर आपका पार्टनर बुमराह हो, तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, rather than you leading the attack और आपके पास वो वाली सपोर्ट नहीं. I have a theory. When Bumrah is playing, batters are obviously challenged so much from the Bumrah end कि वो इसे टारगेट करते थे किसी और को. जब बुमराह नहीं होता and he's leading the attack, then they probably have a different mindset. The opposition batters. और इंग्लैंड तो चलो खैर जहां पे कई जगह हमें स्मार्ट भी नजर आए हैं. I don't think they were particularly smart on day 5. You know you can't chase this. Just fucking play for a draw. They were going for a chase. अब वो जेमी स्मिथ ठीक है, शॉर्ट बॉलों पे चांस लेने लगे. यार तू क्यों चांस ले रहा है? तू खड़ा रहे. अरे खैर जेमी स्मिथ का तो उस पे कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूंगा. जेमी स्मिथ की बात भी नहीं है जो बाकियों ने की. हाँ, जेमी स्मिथ की तो तारीफ ही करेंगे अल्टीमेटली इन द पॉडकास्ट. बट Siraj is a cluster wicket taker. He is a rhythm bowler. When he's hot, he can destroy you. He has been bowling the wobble seam quite effectively. We are Murders on 362. Okay. So yeah. R400. हो गया अब शादी. अब बहुत करीब पहुंच गए bro. By the end of this podcast 400 आ जाएगा. नहीं यार. The second man in the history of the game to register a score of 400. We are Mulder at number 3. Fuck me. Break cricket, we and go and do it. Lara. Yeah. So yeah, I mean, I'm all praise for Siraj. Lara की इस वक्त क्या हालत होगी? मतलब क्या पता खुश हो? I don't think so. मल्टे तो. क्या पता थोड़ी रम-शम साइड पे रखी और बोला let's see how this goes. लारा है तो शौकीन मिजाज. शौकीन मिजाज होगा, लेकिन ब्रो तो उसका रिकॉर्ड मल्डर तोड़ है.
कोई मतलब प्रॉपर बैट नहीं I दे रहा। remember when Harry Brook had a shot to beat Lara's record. सादी तब भी यही कहता कि यार पता है हैरी ब्रुक नहीं यार, अब तो ये मर रहा होगा। लारा है यार, I love Lara। Everyone loves Lara, man, but this guy is 362 and 329 deliveries. Oof, crazy. ठीक है, he is whacking it. और क्या ओवरऑल स्कोर क्या हो गया? 609 for 5. It doesn't matter. नहीं मैं चेक कर रहा हूँ ना कि 5 ये क्या है। नहीं 5 ही है और अब बस फिर- 363 हो गए। फिर कट जाए। 37 runs away or 38 technically. अच्छा Anyway, हाँ, मियां मैजिक ब्रो। सिराज की बात हो गई। I think हाँ। और कितनी बात करनी है? I mentioned how he's bowling the wobble Wobble ball seam, yeah. very effectively. And you know what? I want more and more Asian bowlers to pick up the skill. What are you guys doing? पाकिस्तान को सारे अपने bowling attack को ना कोई स्पेशलिस्ट बुलाकर इसको सिखाना शुरू करो इनको, ताकि ये अगले साल जब इंग्लैंड जाएं। वो कर ही ना ले यार, किधर पहुंच जाते हो तुम? कौन सी दुनिया में मैं रह तो रहे चाह हो? रहा हूँ किसी तरह इमरान बट को सिलेक्ट कर लें उस टूर के लिए, ताकि we can get Tongue tongue to to butt. butt. Tongue to butt में देखना I चाहता हूँ। don't think Tongue's getting another series, bro. इमरान बट को ज्यादा चांस है यार। टंग इतना भी बुरा नहीं है, बट यस He's all right, bro. दिस वाज क्वाइट बैड। He's all right. It just didn't breed or मैं- inspire any बिल्कुल भी नहीं। smidgen of confidence in ना, this ना। bowling attack. And we mentioned this in the previous हाँ। test as well कि यार if Stokes is your best Best bowler तो मसला है। फिर तो जरा मसला है, क्योंकि I know Tongue took more wickets but he was more or less wiping out the Wiping, tail. हाँ। Stokes took the quality इसमें तो वो भी wickets. नहीं किया उसने। Yeah. अच्छा खैर, खैर तो बाकी वही बात है कि I think India fucked up by not having enough frontline bowlers, but it didn't matter. It didn't matter, These bro. guys shared 17 wickets. और these guys shared 17 wickets और उधर जो उन्होंने runs pile up किए हैं ना, Ranziyan. उफ। India scored over 1,000 runs in this test match, man. Oh, That wow. also shows you two things: that India's batting is solid and then England's bowling is dog shit. यही प्रूव होता है इससे। yes. फ्लैट डेक होगा मगर थे मोमेंट्स कैपिटलाइज करने वाले, ऐसी बात नहीं है। कैचेस ड्रॉप किए जो Catches drop किए। दो दफा पंच ड्रॉप कर दिया, दो आपको दफा। पता है कि ये अभी लीड को 300 से 400 पे ले जाएगा और ले गया। और ले गया। ठीक है, वो आया उससे 65 ठोके, क्विक फायर डूइंग ऋषभ पंत Pant थिंग्स, things, हाँ। बैट उड़ रहे हैं, ही इज फॉलिंग ओवर। लव दैट गाय। Entertainment, bro. What a character. He's one of those guys you can't take your eyes off. मुझे लगता है उस्मान समीउद्दीन ने लिखा हुआ था, even if Pant doesn't take the gloves, doesn't bat, he should be in the team. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टंप हाइक पे इतना फनी होता हाँ, है। funny तो होता है। ऊपर से यार, एंटरटेनमेंट। he took a really good catch to dismiss Joe Root. हाँ, जब वो yeah, उड़ता हुआ हाँ। गया लेग साइड पे, I know, मैं भी मानता हूँ कि Pant isn't the best wicket keeper in the world, but for the skill set that he's providing, he is more than serviceable. I think he's more than serviceable. नहीं, he's a good keeper. He's a good keeper. हाँ, बस। Yeah. A lot of people hold this opinion. I think Jared को भी थोड़ा लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, और टेक्निक वाइज शायद ना हो। हाँ। Obviously हमने देखा है पुराने जमाने में जिस तरह की टेक्निक्स होती थी, राशिद लतीफ की हाँ। एग्जांपल ले लो, वो नहीं होगी, मगर वो है तो फिर स्पाइडरमैन। हाँ। सर स्पाइडर लगाए हुए हैं। उसके यहाँ पे स्पाइडर है, अच्छा। उसकी हर उंगली पे स्पाइडर है। Damn. He is going, कितने स्पाइडर हो गए? 12 spiders on the gloves. अच्छा क्या? Spider Pant. How does that matter? क्या स्कोर हुआ? It's just fun. यार अभी ये है 364 पे, so 36 runs away. अच्छा चलो, आ जाओ यार, तुम इंडिया की बैटिंग पे आ जाते हैं। इंडिया की बैटिंग पे आ जाए, आ जाओ। चलो टॉप डाउन शुरू करें या बेस्ट परफॉर्मेंस से शुरू करें? टॉप डाउन शुरू करते Top हैं। down. यशस्वी जायसवाल जायसवाल once again, क्या खूबसूरत again, player है, क्या amazing खूबसूरत knock. player है यार। He was fresh off 100 in the previous game. He had dropped a lot of catches. हाँ। And you know, there are cricketers in the world, जैसे अब्दुल्ला शफीक की मिसाल ले लो, when they do poorly in the field, it affects or हाँ। impacts their batting. Not the case for यशस्वी जायसवाल. जायसवाल ने कहा ये क्या? Yeah. और कैच हो गए, ड्रॉप, ये लो स्कोर। he weathered the storm early on Yeah. when the ball was doing Yeah. something, especially for Chris Wokes, and then he goes on and scores 87 runs. Brisk. He Beautiful. truly is generational. हाँ. ठीक है, और क्या, what is 87 plus 28? यार इतनी मैच मेरे से ना करवाया करो। 87 plus 28 is probably 115, हाँ, right? Yes. Again, उसकी वो जो 53 plus average थी वो deter भी Yeah. हुई, and he is an opening batter. हाँ. He's now played 21 test matches. 21 It's not test matches, हाँ. it's not a tiny sample हाँ. size. It is still हाँ. something. आजकल की 21 cricket हाँ, में 21 टेस्ट मैचेस में अगर आप 50 प्लस एवरेज कर रहे हो एज एन ओपनर, 53 plus, 50 मैंने क्या बोला? 50 plus. एक ही बात है हाँ, यार। दोनों both things are true. It's amazing. 50 प्लस भी एवरेज कर रहे हो ना, हाँ. तो दैट्स अमेजिंग। बारिश हो रही है भाई? 50 प्लस को छोड़ सादी 40 प्लस कर रहे हो तो आजकल अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत हाँ, अच्छा है। हाँ। सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, और ठीक ठाक बारिश हो रही है हाँ। बाहर। महून कब आई है यहाँ पे? महून आई हुई है यहाँ पे, मतलब बहुत ऊंची आवाज आई है भाई मुझे बारिश। स्टेल्थ मोड में तो मंदिर आई है। नहीं, ये जब हमने शुरू किया था तब आ गई थी अच्छा यार। तभी आ गई थी। हाँ। महून जरा तुम भी मर्डर वॉच पे रहो फिलहाल, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा खैर, हाँ जायसवाल ब्रो, जनरेशनल भी कहना जो है ना वो मुझे लगता है कम है। आई थिंक इतना शोर शॉट आप किसी पे ये टैग लगा नहीं सकते। मुझे लगता है बाय द एंड, अभी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ हिज करियर ही इज गोना गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट
ओपनिंग बैटर छोड़ो, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री. Really? हाँ. Opening batters तो मुझे लगता है होगा. Because look, यार the amount of runs he's piling on, bro, was crazy इतनी young age. And the brash arrogance he Brash has arrogance when and he that plays his shots. बहुत beautiful, aesthetically pleasing. He's got all the shots. ठीक है, Everything. जरा offside dominant जरूर होगा, मगर I've seen him hook the ball. यार offside dominance I think is better. Leg side पे तो सारे बंदे ही खेल लेते ये भी हैं. बात Offside पे strong होना थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं, होता he है. is definitely very skillful. और offside पे देखो ना, drives, Oh, cuts, uppercuts. Uppercuts, late cuts, Yeah, bro. yeah, he's- Fast bowlers को late cuts मार रहा होता है, straight down the ground. और Got everything. even if you pack the field on the offside, he will find those gaps. यार I just hope कि he remains injury free और सारा उसका career जो है ना वो वाकई. सही ट्रैक पे रहे, वो बहुत आगे और फिर लेफ्टी भाई तो बहुत ही आगे जाएगा पता ही है कि यार. लेफ्टीज क्या के बारे में कमाल हमारी है. क्या फीलिंग्स है इस Yeah. पॉडकास्ट पे. Yeah. And like I said, it's not like he पिछला doesn't, वाला ड्राफ्ट जाके देख लो, पता चल जाएगा. it's not like he doesn't have those leg side shots, हाँ, right? he's got- I've seen him play them, हाँ, right? So again, I feel like he could really go on to do even bigger things in this series, and I cannot wait to see what Yashasvi Jaiswal achieves in his career. Yes sir. Opening partner KL Rahul. KL Rahul, अच्छा, by the way, ज्यादा इंग्लैंड की तारीफ शायद ना हो इस पॉडकास्ट में, होनी भी नहीं चाहिए. मगर the way they kind of executed their plans versus KL Rahul in the first innings was commendable. हाँ, They they did not were. let him drive. हाँ. They did not let him play any offside shots. उसके stumps target करी जा रहे थे, and they got him to chop हाँ. on. That was the right way to go about it. But then KL Rahul responded. 55 in his second leg. यार उसकी कवर ड्राइव जो थी ना कुछ यार वैसे खूबसूरत. he has one of the The better better- looking cover drives in world cricket. खूबसूरत. Yeah, और बाल भी हैं उसके. हाँ. कवर ड्राइव और बाल वाला कॉम्बो जरा हैवी है. बाल ठीक ही है, मुझे ज्यादा अच्छे नहीं, मुझे मुझे काफी ज्यादा पसंद अच्छे है. नहीं और लगते. तुमने एनके देखी थी बॉय की? एन के नहीं देखी. रेट्रो सचिन ग्लासेस. ये हुई ना. वो नहीं, वो सिल्वर सी हाँ. सिर्फ यहाँ पे दो गोले गोले बने हुए. ये हुई ना बात. या वो स्विमिंग गॉगल्स जो लगती है. कसम से डीके पॉइंटेड दिस आउट. अच्छा, मैंने डीके नहीं वैसे डीके notice कपड़े अपने बड़े शौक से खरीदता हूँ मेरे ख्याल से. डीके इज ऑलवेज वेरी वेल क्लैड. ओ पता नहीं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे वो भी चल रहे थे. Yeah, that was funny. Best dressed. Ravi Shastri won Yeah. that, right? With his white suit. Ravi wins it, bro. How do you beat Ravi Shastri in a white suit, right? हाँ. But anyway, क्या बात क्या कर रहे थे हम लोग? हम बात कर रहे थे KL राहुल की. So, whilst England got their plans right versus him and really, really well planned dismissal, the way he comes out and scores 55, और इसकी एक बड़ी बात चल रही थी कि every time he plays in away test series, he will do well in the first test and then it'll all be downhill from there on. अच्छा. थोड़ा सा उसने आपको रीबटल दिया by scoring that 55 and it was a brisk 55. हाँ, it was- आकर उसने तेज खेला है. India understood the assignment. कि आगे स्कोर पाइल ऑन करो, टाइम कम में मारो. मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था when they kept on extending their lead. I was like, yeah, declare already. और स्पेशली वो जडेजा की जो इनिंग्स थी ना वो थोड़ी सी स्लो साइड पे थी. मैं टी पे डिक्लेयर कर देता. I would have given myself 4 sessions to bowl out England. That didn't matter ultimately. स्पेशली मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कल बारिश आ जाएगी. हाँ, और आई शुरू में आई थी ना, तो वो मुझे था कि यहाँ पे 5th डे पे अगर वो प्लान वर्कआउट ना करता और बारिश थोड़ी लंबी हो जाती और ना होता ना, तो फिर यहाँ पे सारे बैठ के बात कर रहे होते कि यार बहुत ज्यादा लंबा खेल खैर, रहे I हैं. wouldn't blame India at all क्योंकि इंग्लैंड की बेवकूफी है that they weren't pragmatic enough. England- You could have just batted out the day. इतनी Stupid. कोई विकेट कुछ नहीं कर रही थी. कुछ भी नहीं कर Yeah, yeah. आप आके रोको. हाँ, आपको एंड में 16 ओवर मिलने थे न्यू बॉल वाले, वो होते थे मुश्किल. फिर वो काफी मुश्किल होता. आप समझ आइए कि इंग्लैंड क्यों नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए कभी भी क्वालिफाई कर सका. 3 एडिशंस हो चुके नहीं यार, you are up in the series, remain up, right? तुम जो पॉइंट्स सारे हार जाओगे, परसेंटेज पॉइंट्स, तुम्हें कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे. No one expects you to chase down 600 runs, man. It is okay to be pragmatic in that sort of case. And to be fair to a few of those guys, just Stokes, they did kind of dig in for a bit, but some of them didn't. वो लोग खुश हो रहे थे जब बैश लास्ट विकेट पे आके रिवर्स स्वीप पे ट्राई कर रहा है. Yeah. मैंने कहा, यार आपके पॉइंट चले गए, मैं तपा होता यहाँ पे बैठा. वाकई. तो खैर, You know, आपको पता है बेस बॉल है, एंटरटेन करने के लिए वो सारी ये बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर टू विन पॉइंट्स यार. yes, you want to give yourself the best shot to play that final. Stupid ultimately. And this was a bit stupid, right? But अच्छा, anyway, Rahul की और क्या ही Rahul बात was करें? solid. I feel like he is now in this little nirvana period in his career where he is seeing things clearly. हाँ. He has no insecurities. No. He's not afraid of losing his spot. है भी नहीं ना और नहीं कोई. है, कोई और नहीं है. और राहुल तो versatile है ना. हाँ. If he doesn't open, he can bat somewhere else. फर्स्ट ड्रॉप, Anywhere. सेकंड ड्रॉप, 1 थर्ड to ड्रॉप, 6 में कहीं भी. 5th, 6th. कहीं भी खेल सकता है. हाँ. So he knows that he is a value add and he is looked upon as an asset, and now He is an asset, after yeah. scoring 179 runs in the first test, including that 137, ये 55 बड़ा crucial था Crucial because it gave India that start. हाँ. वहां पे यार शुरू में 3-4 विकेट गिर जाए अगर मैच उलट भी उलट सकता सकता था, You बिल्कुल never know. उलट. If England were just chasing 380, who's to say they wouldn't have chased it? एनीथिंग अंडर 400 इंग्लैंड ने कर लेना था. मगर मतलब पता है- उस माइंडसेट के साथ आना था. At the tea break on day 4, India were leading by 484 हाँ, runs. And I was I like, would have- you know हाँ. what? This is enough. ये नहीं ज्यादा करेंगे. से ज्यादा 500 तक लीड लेके जाके हाँ. कर दो. अब the thing with
England is that you don't need to dangle the carrot. Right? हाँ. They They will just go for they it. will go for अब तो it पता anyway. चल गया. हाँ. हाँ. जो कि शायद अब ये आगे जाकर कुछ बदले इसमें. I don't know, bro. I really hope that the surfaces get better. कोशिश तो करो यार कुछ even out करने की. I'm not a fan of flat deck summit. नहीं पसंद है. I don't like it. Yeah. हाँ, boring हो जाता है टेस्ट मैच. हाँ यार अगर विकेट गिरे ही मत तो आप कहते हो यार why am I watching this? Right? अच्छा खैर स्कोर क्या हो गया मल्डर का? Even contest between bat and ball. Mulder थोड़ा हल्का हो गया. 366 ही है. 6 आउट है. 5 आउट है. 5 ही आउट है ब्रो. विरेना भी नहीं आउट हो रहा दूसरे एंड. चलो सही है. और पता है अब लंच इज प्रोबब्ली 4 minutes away if I'm not wrong. इसीलिए वो थोड़ा स्लो डाउन. हाँ मे बी ही इज लाइक लेट्स सर्वाइव दिस और फिर वापस फिर आते टी तक मैं 400 करके. ये ना अभी पॉडकास्ट खत्म होता है ना महून तो हम सारे 400 तो साथ देख रहे हैं. ठीक है तो तब तक हो चुका होगा. अच्छा भाई ठीक है. उसके बाद करुण नायर. यार बेचारा पहले 6 पे था अब 3 पे था. आई डोंट रियली ब्लेम हिम आइदर. Then again, Yeah. एक दो अच्छी शॉटें मारी हैं उसने, ऐसी बात नहीं है. सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट वाज अचीव्ड इन दिस गेम 31. बाकी 303 उसने मारा हुआ है. नॉट आउट था शायद वो. और yeah I mean look as far as median scores go he would have a low one obviously because एक जगह 303 और एक 36. but he is only the second Indian to score a triple 100. 2 सहवाग के ट्रिपल्स हैं, एक करुण नायर का ट्रिपल है. It's crazy. I think that you give him the series but you give him a firm role as well. अब अगर आपने ये फैसला कर दिया कि वो 3 पे खेलेगा तो आप उसको 3 पे खिलाना. साई के साथ मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती कर गए हो आप लोग. मैं वैसे दोनों को ही खिलाता. हाँ I wouldn't have touched them. मैं बैटिंग यूनिट को तो टच ही ना करता. चलो सही है नहीं चले बट रेड्डी को खिलाकर भी क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं. ना आपने उसे बॉलिंग कराई नहीं स्कोर 2 रन. सो आई मीन यू कुड हैव जस्ट प्लेड साइड 3 इन करुण नायर एट 6. साई के साथ जाती है, इसके साथ भी जाती है. चॉप एंड चेंज करना. एक टेस्ट मैच बाद साई निकल गया, इसको उठा के आपने पोजीशन चेंज कर दी. बिल्कुल. Then again he looked good. प्लेयर आपको पता है कि है क्वालिटी. हाँ. लेकिन वो बस नहीं चल पा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में. होपफुली नेक्स्ट टेस्ट मैच में कर ले कुछ. Yeah, I mean, let's see. I feel like एक सीरीज तो उसको मिलेगी पूरी सही तरीके से. I don't think they're going to drop him instantly. And yeah, I mean, he has really hustled hard in first class cricket. He has deserved his spot. merit पे आया है. He is the only Indian batter क्योंकि अब तो साई को टीम नहीं खिला रहे ना वो. Him and Reddy are the only 2 batters who are not in form, I suppose. बाकी तो सबकी फॉर्म लग गई. Everyone's scoring runs. शुभमन गिल. Shubman McGillicuddy. He has now batted 4 times in Test cricket as India's captain and India's number 4. एक डबल, 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज होगी टोटल. He has scored his 3 highest scores in Test cricket in these games, right? He scored 147 initially, पिछले मैच में. Then he goes on and scores 269. He had a solid shot at a triple, right? हाँ, he did. And then उसकी आखिरी innings में भी he scored 161. Yes, crazy यार. 430 runs in the Test match for Shubman Gill, which is the second highest tally of runs on aggregate in a Test match ever. Graham Gooch is number 1. उसने इंडिया को ही शायद मारे हुए वो runs. उसके पीछे सिर्फ अब शुभमन गिल है. इतने ज्यादा रन एक टेस्ट मैच में, ब्रो. ही इज अ क्लासी ब्लोक सादी. ये पाकिस्तान 2 इनिंग्स मिला के 10 बैटरों के साथ ना कर सके. खूबसूरत तरीन बैटिंग. और पता है it was very smart batting as well because they targeted his stumps as well. He anticipated those deliveries and he respected the good length. एक मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था ट्विटर के ऊपर लगाया हुआ था कंपैरिजन ऑफ हिज प्रीवियस टेस्ट मैच एंड दिस टेस्ट मैच, जिसके अंदर प्रीवियस टेस्ट मैच में बैट एंड बैट के बीच में गैप था. He fixed that. Yes, in the second test match. That's crazy. एक टेस्ट मैच में आप ये कर रहे हो. ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में अच्छा खासा बोल्ड हुआ. ठीक है. And of course being demoted to number 4 helps him because it does get easier, but you can't take anything away from him. The man has scored 430 runs in a single test. Just by the way, इंडिया के लिए कितना परफेक्ट है. नंबर 4 पे आपका एक शुभमन गिल है, वो भी generational. और ओपनर पे आपका जयसवाल है. बिल्कुल. और शुभमन गिल before this series was averaging 35 with the bat. He's 42.72 now. That's insane. That's nearly an 8-run jump in your batting average, yaar. I mean, and he has been prolific. Sachin Tendulkar has only scored more than 430 runs in a series thrice. Yes. He scored 430 runs in a test match. 1 test match. ठीक है. इसने और भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं यार. देखो ना, all the things that he's done. इंडिया कैप्टन बना, नंबर 4 बना, 4 इनिंग्स में 3 शतक जड़ दिए. एक डबल 100. Highest score by an Indian batter in England. Yes, highest score by an Indian batter in England. Highest, I believe ये लिखा भी हुआ है. Highest score by an Indian captain. Yes, ever. No Indian captain has ever had a higher individual score than Shubman Gill's 269, and it gets better. Shubman Gill का भी ये highest first class score है. He has never scored 269 runs before. और वो तो चलो वो ultimately the short ball got him, but you know what I love about Gill, or at least this knock,
he respected the good length. When it's full, he will either flick you or he'll drive you. ठीक है, flick है तो Flick है खूबसूरत खूबसूरत और ड्राइवेज की जायसवाल जितनी प्यारी नहीं है शायद, लेकिन मगर है प्यारी तो है। हाँ, और ये हर जगह मार लेता है। क्या स्कोर हो? 367 पे है साथ, अभी लंच हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है। एंड देन व्हेन यू बम्प इट अप लाइक short to him, when you drag your length back, he could cut you, he could pull you bro, yeah. पीछे होके पुल मारी है उसने, काफी सी बहुत controlled pull है। It's I know he ultimately gets out on the pull, but he is a very very good puller of the ball, and we know that he can uppercut it as well. Versus spin देखो, he can sweep it, he can reverse sweep it, he can come down the ground, जो कि किया इसने। Bash को he took bash on, काफी खूबसूरत छक्के मारे, एक तो उसने up and over extra cover भी शायद मारा है, सही किया ना। हाँ, उसको तो ट्रीटमेंट मिली है प्रॉपर यार, बेचारा शोएब बशीर मस्ट बी फीलिंग इट। Hey, he was happy. Reverse sweep में आके लास्ट इनिंग्स में मार रहा था, और छक्का भी मारा बैश ने। छक्का भी मारा। सो गिल इज प्रीटी मच द कंप्लीट पैकेज। जो उसकी वो वीकनेस थी बैट एंड पैड वाली, वो उसने फिक्स कर ली है। एंड ही इज आल्सो ओनली व्हाट 25 और 24 मुझे बताओ, पिछले 5 दिनों में या 4 दिनों में हमने हाई स्कोर बाय एन इंडियन टेस्ट कैप्टन देख लिए, हाई स्कोर बाय एन साउथ अफ्रीकन टेस्ट कैप्टन, हाई स्कोर बाय साउथ अफ्रीकन पीरियड। ये क्या हो रहा है? ठीक है, he's crossed sobers for crying out loud, he's on 367, ठीक है, 8 away from the second highest run score. नहीं Hayden है 380, 13 away from Hayden, or if he 8 away from Lara's second highest score. If he crosses Hayden, then it's just Lara. Take that in, let that sink in. Mahoon, I know बारिश हो रही है, मगर सिंक को इस वक्त आने दो अंदर। यार ये वाला जोक बहुत बुरा लगता है। अच्छा, लोगों को बड़ा पसंद है। अच्छा चलो। Yeah, people lose their shit on this joke. मुझे मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं कि यार आपका जो सिंक वाला जोक है ना। ये क्या हो गया? ये लेवल ऑफ कॉमेडी है इस मुल्क में। अच्छा, बट खैर यार, I think sky is the limit for Shubman Gill. This might be the start of something very very special. You know? यार it's ridiculous कि आप कैप्टन बनते हो और इतनी बड़ी टीम का कैप्टन बनते हो, रिप्लेसिंग रोहित, ठीक है, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, और आप जाके फिर ये कर देते हो, और फिर कोहली को आप रिप्लेस करते हो नंबर 4 पे, और फिर आप जाके ये कर देते हो। Huge boots to fill, man. As you've just mentioned, right? It's ridiculous. And the way he's just completely composed. Completely in control of his game. I don't think there's any correlation between captain scoring more runs, but definitely the added pressure तो होता है। The situation that was surrounding Gill, retirements, plenty of them. Sharma, Kohli, Ashwin. Added responsibility आ जाती है ना आपके ऊपर, यार मेरी टीम है यार। You are averaging 35 with the bat. People are questioning you. ठीक है, मैं नहीं, मैं और साथ काफी देर से शुभमन गिल को बैक ही कर रहे हैं। But I mean, he's been prolific. और बीच में हल्का सा गंदा स्पेल आया था, उससे पहले भी थोड़ा प्रोलिफिक हुआ था, राइट? बीच में गंदा स्पेल आया, उसके बाद अब देख लो ना, अब पता नहीं कहाँ जाता है। वो अलग बात है कि उसने नाइकी का वो पहना हुआ था और एडिडास स्पॉन्सर्ड है इंडिया, वहाँ पे मसले ना हो जाए, वहाँ पे थोड़े मसले हो सकते हैं। क्या है, 15% फाइन भी दे देगा। Also, like Babar Azam, he loves to use the word definitely. मैंने ये नहीं सुना, और प्लीज हर पॉडकास्ट पे नहीं मेंशन करना होता था, जरूरी। खैर, बाबर आजम को मैं एक बात बताऊं, वियान मल्डर ने बातें की थी। He trash talk बाबर आजम, he is currently batting on 367 not out. ठीक है, the ball's in your court बाबर, करके दिखाओ कुछ। अच्छा खैर, उसके बाद पंत, यार क्या सीन, आप जायसवाल ओपन करे, फिर गिल आए 4 पे, उसके बाद पंत आपके और फिर नंबर 5 पे आके पंत ऐसा प्लेयर जो आके बस धज्जियां उड़ा दे। आप अगर पंत खड़ा रह गया थोड़ी देर तो गए आप एज एन ऑपोजिशन। जिस तरह हम ट्रेविस हेड की बात करते हैं ना, 1-1.5 घंटे में वो पूरी complexion चेंज कर देता है मैच का। पंत सेम, पंत इज नो डिफरेंट। इनफैक्ट Jared just wrote a piece and he created a video on the rock and roll or punk number 5s. Pant is now number 5, yeah. आजकल ये सीन चल रहा है, you look at Travis Head, you look at Harry Brook, you look at Rishabh Pant. These guys are certain players who aren't exactly full vibes based, but they are vibes based. इनका मेथड अजीब सा, ये पंत विल नॉट अटैक एवरी डिलीवरी, इसके बड़े अजीब ऑकवर्ड ड्रॉप स्टॉप्स होते हैं, बहुत अजीब, बहुत ही अजीब सी, जब वो रोक रहा होता है ना तो बहुत वियर्ड लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। बट ही डज प्ले दैट dab to third man really well. But anyway, I think Rishabh Pant is just going on to further cement his legend. I loved the field that Stokes had for him in the first innings. There was an overlap field. Overlap field, बैच ने जो आउट किया था। Very very funky. Overlap field का मतलब ये कि यार पंत के लिए बंदा मिड ऑन पे भी था और लॉन्ग ऑन पे भी था। I do this thing in cricket 24. So when I saw it play out in real life, I was like, holy shit, what is happening over here? Stokes भी खेलता होगा वो, मुझे लगता है। Bass ball की मुझे ये चीज पसंद है, the funky fields. You saw 2 leg slips at one point. You saw short mid off and short mid on. वो तो मैं कहता हूँ, मैं कितनी दफा कहता हूँ यार रखो यहाँ पे बंदा। दोनों लोग थे वहाँ पे, बेसिकली 2 लोगों के दरमियान में बॉलर आ रहे।
That's ठीक है, मुश्किल है, that was खेलना quite मुश्किल है weird. यार। We've seen umbrella fields as well, हाँ। ठीक है, but वो overlap field में मेरा दिल जीत गया। लेकिन मसला ये है, फायदा कोई नहीं हुआ इन फंकी फील्ड्स नहीं, का। नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड वर स्ट्रगलिंग टू बाय अ विकेट बेसिकली, ठीक है, एंड अगेन ऋषभ पंत, आपको पता है वो क्या कर सकता है। क्रॉली ड्रॉप्स हिम ऑन 10 व्हिच वाज फेयरली इजी, आई नो, वाज क्विक, तेज आई बॉल, इतनी कोई तेज पकड़नी नहीं, चाहिए आपको fairly इस लेवल easy पे। थी, 10 पे ड्रॉप किए पंत को वहां पे, and then Pant was on 31 when Chris Wokes dropped him and he had gotten his hand on it. At that point you have to take that catch. I know he only scores 65 runs, so he doesn't do But off a 58 lot of deliveries यार। damage, but off 58 deliveries, and also यार वही वाली बात है कि you might have a smidgen of opportunity if you get him early, कि यार चलो we might run through the tail again, ठीक है, but when you don't get him early he pretty much knocks you out, वो KO वाला पंच मार देता है वो, and that's what Rishabh Pant does best. अच्छा, मजे की बात है, सेकंड इनिंग्स में जडेजा को प्रमोशन मिली है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में जडेजा ने जो किया है विद द बैट, आई मीन पार्टनरशिप्स विद गिल दोनों ओकेजन्स पे, और कहां से कहां पहुंचा दिया उसने स्कोर। I think Jadeja is the second most crucial batter for India in this test match. एक तो he got twin 50s, obviously 89 and then an unbeaten 69, जो कि मेरी ये theory थी कि 69 के ऊपर आगे डिक्लेयर, that's what they were waiting for. यार 600 भी हो गया, अब और क्या चाहिए, नहीं जडेजा को 69 पे लेकर जाते हैं, फिर डिक्लेयर करेंगे, ये शायद आपका थॉट प्रोसेस हो वहां पे। लंच हो गया, शादी 367 पे मर्डर आराम से बाद में देखेंगे, ठीक है, फिट हो गया, yeah, at least that chapter is closed for the time being. Right? Alright, so Jadeja, he showed us both kinds of batting. At times he attacked, at times he defended. I feel like with India, I think second innings में थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव हो गया था। हाँ, एक टाइम पे हो गया था, मैंने भी कहा यार जरूरत नहीं है इसकी। वापस आया ना तीसरी, फिर इसने मारना शुरू किया, फिर गेल और इसने दोनों ने मारना शुरू किया। Basically, ये हुआ यही है। मगर यार Jadeja on numbers is a way better all-rounder than Ben Stokes, for instance. He's averaging more than Stokes with the bat. और bowling में तो चलो obviously he plays in India और spinner है, तो वो तो हो ही जाता है, but he might just be the best all-rounder of this generation. He is. I don't think there's anyone else. नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं है। इन दोनों के दरमियान ही था ना। अरे जडेजा यार, मतलब कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्मेंसेस देखे जाओ, अभी स्टोक्स की बैट रन फॉर्म देख लो तो फिर क्या हो रहा है। जडेजा भी ना throughout his career he has given India clutch runs. That's been his thing, right? Over here he's scored what is 89 plus 69? ये तो बहुत ही मुश्किल मैथ है भाई। 89 में 9 ऐड करो, 98 में 68, 158 runs. Oh damn. I think. Yes, I'm correct. नहीं, 158. He scored 158 runs and got dismissed once, right? That is a phenomenal performance. And when India lost Nitish Kumar Reddy, जब वो shoulders arms होकर bold हो गया Chris Wokes पे, and India were at that point 211 for 5. I thought this might be it. Now we'll see them crumble. वहां से जाकर Jadeja and Gill, they strung up a partnership of 203 runs. That I think was the partnership that broke England back in the first innings. नहीं, मुझे लगता है वहां पे टेस्ट मैच आधा जीत गया था इंडिया। यार आप हार नहीं सकते 500 करने के बाद, हालांकि इंग्लैंड कराती है। Every time before this game that they had conceded 500 in test match, they had won those test matches. It's a very funky record, right? But then again, you know, India not only scored 500, they scored 587. They really took it deep. वो Washington भी आकर runs करने लग गया था. He scored 40 odd, right? And Gill खड़ा हुआ था. Gill तो खड़ा हुआ, unperturbed, कमाल innings, unfazed, very very laser focused. You could tell कि इसके plans sorted and good luck getting this guy out, right? Crazy, So crazy. I think Ravi Jadeja needs to deserve or is deserving of all of those plaudits because he was their second best batter, India's. किसी ने भी और 250s तो नहीं मारी मगर यार just to close up on India's batting, यार everyone is informed. जायसवाल, राहुल, करुण नायर नहीं है, चलो गिल, पंत, जडेजा, 5 people out of your top 6. That's insane. और क्या चाहिए ऊपर से I think Lord would be better for bowlers, but it might get flat like the World Test Championship final. Remember? साउथ अफ्रीका को इजी बैटिंग कंडीशंस मिली ना एंड में, जब उन लोगों ने एंड में मिल गई थी ना, तो शायद इस तरह की चीज कोई वहां पे भी हो जाए। इंग्लैंड नीड्स टू सॉर्ट दिस शिट आउट। इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका वो लगा कि यार मे बी वी कैन जस्ट फील्ड एवरी टाइम वी विन द टॉस, राइट? ये बड़ा झटका लगा, बट मे बी इट लॉर्ड्स दैट माइट बी द राइट थिंग टू डू। पता नहीं, अब बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अब पता नहीं क्या सूरत हालात हो गई है लंदन की। लंदन इंग्लैंड की बैटिंग रहेगी यार। हाँ, मगर उससे पहले
जरा सबको बताओ कि जानीज किस तरह बनते हैं। आप लोग जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि एक डिस्कॉर्ड में स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम मेरे से माइंड से हर एक से बातें कर सकते हैं, फन स्टफ भी होता है वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट इज फ्री फॉर ऑल टू ज्वाइन। वहाँ पे काफी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनमें आप पार्ट ले सकते हैं। मगर जानीज वाली चैट में आप साथ और मेरे और महून के साथ एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव सिव 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 सिव। जारी बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बन सकते हैं। इजी पैसा है 1500 पर मंथ पे, आपको एक मंथ के लिए ऐड कर देंगे। नंबर है 031936022545। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें। इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्या क्या तरीके हैं बिराम? बाकी यार, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, Saad and I have you sorted. We live in Islamabad and our studio and office is located in the E113 Markaz. So come and seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए मेरे। And per 1500 payment we will make you a Jani the podcast for 1 month. If you gift us an authentic sports jersey, कोई भी टीम हो, कोई भी sport हो, international, domestic, doesn't matter, authentic होनी चाहिए, not a knockoff. Per jersey, authentic sports jersey, we'll make you Jani for 6 months. And as you all know, Saad, myself, Mahoon, we are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage and cricket coverage in Pakistan. Enough of this masaledar khabrein, sansani-kheziyan, sensationalism. We are promoting intelligent sports/cricket discourse, and the Jani's community is very inclusive. Everyone is welcome. It's super nerdy. Come become a part of it. Yes sir. मेरे से हमारा जो राइटर है उसामा, उसका मैसेज है, do you reckon he's going to score 400? I think he might. Should I write an article already? मैंने कल बना लो। कर लो ब्रो, बना लो। मैं तो सीधा इसके बाद हम लोग चाय ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है? शायद थोड़े फ्राइज भी हो जाएं। ओह, सही है। Mahmood likes that idea. और मौसम भी जरा बारिश देखो, हो मैंने गई है। चाय बोला ना तो उसने उंगली की है, तो मैंने फ्राइज बोला, उसने कहा ये ठीक है। So she's definitely game. But yeah dude, क्या बातें क्या कर रहे थे हम? इंग्लैंड की बैटिंग पे। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंग्लैंड की बैटिंग से पहले। वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप्ड कैचेस फॉर इंग्लैंड। Didn't matter. पंत वाले दो। इतना बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं था। इंडिया के भी सुन तो ले बात, सुन ले 2 सेकंड। मैं वैसे उन कैचेस की बात। India had a few chances that went down, half chances, this and that. But if you compare their fielding To the from the previous first test to this, they were जमीन आसमान का फर्क। phenomenal in the slip ओए, quarter. ओए। I don't think they dropped any catch in the They slips. didn't. सब पकड़े। हाँ। करुण नायर, हाँ। KL राहुल, शुभमन गिल गिल का बहुत- एक बड़ा बहुत शानदार अच्छा कैच catch था, था आते सार पकड़ हाँ। लिया था उसने। So जहां पे इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही है, वहां पे their catchers backed them हाँ। up. They actually caught really well. देखो लास्ट टेस्ट मैच में भी इंडिया की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी जितनी कैचेस ड्रॉप कर दिए थे उन्होंने यार। ये बात 7 भी कैचेस ड्रॉप किए थे कुछ उन्होंने। ज्यादा ही, 7 कैचेस बहुत हाँ, होते हैं, हाँ। राइट? वेस्ट इंडीज ने भी फिर ड्रॉप किए हाँ। 7। बट एनीवे, I feel like you have to credit their fielding as Fielding, well yeah. because of the step up, Yeah. right? नहीं बहुत अच्छी फील्डिंग थी। ये बात नहीं कि बुरी फील्डिंग थी। अगर वो कंपैरिजन ना भी करो तो इट वाज अ डिसेंट फील्डिंग एज कंपेयर टू इंग्लैंड। लेकिन उनका भी इतना मैटर नहीं किया। 2 कैच आई नो ड्रॉप किए उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से टेस्ट मैच नहीं हारे वो। जस्ट बाय द वे। नहीं। हाँ, उसकी वजह से वो नहीं कैच पकड़ भी लेते तो इंडिया जीत ही रहा था। वाकई क्योंकि क्या यार, एंड में दे लूज बाय 336 runs, chasing 600 and what? वो लीड उससे ऊपर हो चुकी थी पहले। हाँ, वो लीड तो ऑलरेडी उससे ऊपर हो चुकी हुई थी। बट एनीवे, कमिंग टू इंग्लैंड्स बैटिंग, बोथ द ओपनर्स वर पुअर। Duckett was poor in this test match. Ollie लेकिन चलो उस पे बनता है यार, एक आधा टेस्ट मैच तो आप गंदा खेल ही लेते। Ollie Pope might not retain his spot by the end of the series. Joe Root is not firing the way he's supposed to. Joe Root is not firing, वो बहुत बड़ा मसला है। Big pain. Zach Crawley needs to go. Brook और Smith पे आते हैं जरा। Stokesy is not firing. Stokesy is looking quite poor with the bat. कंपैरिजन करो इंडिया की जो हमने इनफॉर्म बैटर्स का की है और फिर इंग्लैंड के इनफॉर्म बैटर्स का करो तो चलो डकेट को मैं मान लेता हूँ फॉर्म में स्कोर आए। Brook को रख लो। ब्रोक है और स्मिथ है। हाँ, तो उनकी टॉप 6 में 3 बंदे फॉर्म। And I know some of them got 50s and Pope got 100 in the previous test, but they don't breed a lot of confidence in the sense कि ये वो reliability factor। पोप को अगली सीरीज खिलाओगे 5 टेस्ट मैच की, उसमें भी 100 हाँ, मार 100 तो मारेगा ना, वो इसी तरह का तो उसका करियर जा रहा है, right? But if I look at England's first innings, right, batting innings, 84 for 5 थे. Then you had a 303 run partnership between Smith and Brook, and then they were bowled out instantly. After that, like 300 and क्या ये 87 for हुए 6, and then they were bowled out for 407. 20 रन में बाकी सारी विकेट भी गिरी यार. It was an entire innings of one partnership. That is something that you don't get to see every day. वो उनका मीडियन और वो भी स्कोर था। वो ही ना, one of my favorite tweets in this entire test match was by Abhishek Mukherjee, and he had told in the tweet that England's median score in their first innings was 0 and their mode was also 0. जिसने stats नहीं ली हुई, मीडियन 50% मार्क पे आता है। अगर आपके पास 11 डिजिट्स है ना, तो 5वें पे कौन सा आ रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर,
या छठे पे कौन सा आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, 5 इस तरफ 5 उस तरफ, तो वो 0 था, इंग्लैंड हैड 6 डक्स, तो इसलिए मीडियन स्कोर 0 हो गया। और 50% ऑफ द टाइम्स आप कहते हो ना बैटर का जब मीडियन स्कोर देखते हो 50% ऑफ द टाइम्स वो कितने रन्स कर, दैट्स हाउ यू लुक एट इट, तो दैट्स मीडियन। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर, आउट ऑफ 11 बैटर्स there were 6 ducks, 0 again, that is fucking insane man, like how poor could you be? मतलब मुझे तो लग रहा था ये बहुत जल्दी हार जाएंगे। वो तो कमाल है कि वो पार्टनरशिप देगा यार इतनी शानदार। एंड यू नो जेमी स्मिथ की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ही वाज एट हिज काउंटर अटैकिंग बेस्ट। ही यार सीलिंग बहुत हाई है इसकी, अंडर प्रेशर बैटिंग की। इसकी इनिंग्स, दोनों इनिंग्स की मैं तारीफ ज्यादा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि इसके अंदर ये वाली कैपेबिलिटी। आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ ग्रेट बैटर, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन द वे ही इज स्टेप्ड अप व्हेन इंग्लैंड नीडेड हिम, amazing, yeah. He's also versatile, by the way. He can shut up shop and hit big, and he hit big. And he can play spin well as well. Spin और pace दोनों के लिए सच है। Important बात है। I love his pulls. I think those are probably my favorite Jamie Smith shots out of all of his shots. बड़े जबरदस्त expansive तरीके से करता है। इसकी भी पंची सी कवर ड्राइव होती है, प्रॉपर नहीं होती। इसका जो आर्क है ना, ये मिड ऑन से लेकर स्क्वायर लेग वाला, ये बड़ा सॉलिड आर्क है जेमी स्मिथ का, and I love to watch him bat in that particular region. But look, he scored his 50 of 43 deliveries, counter attack, and his 100 of 80 balls. ठीक है, गिलबर्ट जेसप्स रिकॉर्ड was under threat. ये कौन? गिलबर्ट जेसप ने 1902 में इंग्लैंड की फास्टेस्ट एवर टेस्ट सेंचुरी मारी हुई है। That's crazy. 76 deliveries. Gilbert Jessup averages 21 in test cricket, so it's not like he was a batter. ठीक है, वो एक आउटलायर है। 1902 अभी तक उन्होंने तोड़ा नहीं है। नहीं, 123 years despite baseball, Gilbert Jessup's record stands. ठीक है, क्रिकेट को क्या हो गया? हाँ, मतलब एक जगह मल्डर 400 ठोकने वाला है, उधर गिलबर्ट जेसप का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा। डू यू फॉलो द डेजी कटर? नहीं। By the way, Jared recently interviewed I've forgotten his name, Idilko from the Daisy Cutter, and she spoke about OCD in cricket. That's worth looking into. बहुत जबरदस्त था, मैंने भी सारा देखा। But Daisy Cutter kept taking like the piss out of Gilbert Jessup throughout. वो Mr. Burns को इस तरह ला रहे हैं कि that's Gilbert Jessup's ghost. He's watching on Jamie Smith. But चलो, 80 ball 100 was still quite good, and he ends up unbeaten on 184. मुझे तरस आया बेचारे पे। मैंने कहा यार कोई खड़ा ही नहीं हुआ इसके साथ। कोई नहीं खड़ा हुआ। 200 ही करने देते उसको। बेसबॉल का सबसे बड़ा मसला ही है, एक मोड में चलते हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। Most runs in a single innings by a wicketkeeper in England or something like that. रह गया उसका रिकॉर्ड मेरे ख्याल से, but ultimately he scores 184 unbeaten in the first knock, and then he scores 88 in his next game. So that is a lot of runs. I think only Andy Flower has scored more runs. कितने? अब ये कोई मैथ बहुत मुश्किल हो गई है मेरे लिए यार। 192 कर दे। 272 छा गया साथ। 272 runs in the game for Jamie Smith, dismissed once. इसकी एवरेज क्या हो गई है? इसकी एवरेज ये 40 प्लस चल रहा था। हाँ, इसकी एवरेज होगी 60 हो गई होगी मेरे ख्याल से। 60 नहीं हुई होगी। खेला कम है ना मेरे ख्याल। 60 तो नहीं हुई होगी। खेला बहुत कम है। कितना खेला है? जितने कम खेले उतनी एवरेज बात। आई नो, लेकिन खेला कितना है? अच्छा खासा खेला। 15 टेस्ट खेला होगा ज्यादा। 15 से ज्यादा ही होंगे अब तक तो यार। इंग्लैंड खेलती इतनी टेस्ट क्रिकेट। हाँ, अब नहीं, अब 10 ही खेलते हैं साल के। एक टाइम पे 15 खेलते थे। 12 मैचेस हुए। 12 हुए सिर्फ। 58.64। I was close. ठीक है। 58.64. I mean, almost touching 1,000 runs. 997 हो गए। If Jamie Smith can end his career with a batting average of 45 plus, he will be great. He's a big lad. Quite huge. See, broad shoulders. और पता है लंबे कीपर्स इतने देखने को मिलते नहीं। और पता है, I mean, he wasn't brought in as a specialist wicket keeper. He was brought in as a guy who can keep wicket and he bats. That's proven to be a good, fruitful decision by England. और कौन है लंबे कीपर? एलेक्स केरी अभी। और तो लंबा कीपर कोई नहीं है। रिजवान नहीं लंबा, पंत नहीं लंबा। और हैं कौन कीपर? श्रीलंका का मेंडिस नहीं लंबा। होप नहीं लंबा। होप में से कितना लंबा है? होप होगा शायद लंबा। नहीं इतना लंबा यार, वो बाकी इतने लंबे हैं ना कि उनकी जो थोड़े कम लंबे होते हैं वो छोटे लगते हैं। लेकिन इतना लंबा नहीं है ना जितने वो दोनों है लंबे। होप तो खैर आया भी अभी है ना। उससे पहले तो जोशुआ डिसिल्वा वाज अ बिग डील। he was all right. Yeah, I think he might have been tall. उसके अलावा हिस्ट्री में चले जाओ तो कौन? गिलक्रिस्ट लंबा था यार। अच्छा खैर, किधर निकल गए? बहुत रैंडम टॉपिक पे चले गए। अच्छा, उसके बाद जेमी स्मिथ वाज ब्रिलियंट, सो वाज हैरी ब्रूक। यार, हैरी ब्रूक का पता है क्या सीन है? वो भी लाइक आएगा, और आई थिंक आउट ऑफ हिज फर्स्ट 5 डिलीवरीज ही हैड अ कंट्रोल परसेंटेज ऑफ 20. You don't really know what you're going to get with Harry Brook, and उसकी एक वीकनेस भी एक्सपोज हुई है. Everyone in India and Australia would have been looking at that ball that nips back in. अब वो आप आकाशदीप जितनी nip back in शायद ना कर सको, मगर Hazelwood could do that, right? Ashes पे फोकस करें. Scotty Boland, ये Josh Hazelwood,
खा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को अगर इस टीम के साथ गई है। अच्छा, बॉलिंग में तो कोई बंदा बॉलिंग में है ही नहीं ना। दैट्स द थिंग, यू विन गेम्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट बाय टेकिंग 20 विकेट्स, और इंग्लैंड की बॉलिंग देखकर लग ही नहीं रहा था 20 विकेट ले सकते, बट हैरी ब्रूक की तारीफ फिर भी करनी पड़ेगी। आई नो दैट ही डजंट स्कोर रन्स इन हिज सेकंड डिग, बट 158 अंडर प्रेशर अगेन इन दैट फर्स्ट नॉक। इसने भी काउंटर अटैक किया, इसने भी काउंटर अटैक किया यार। आई लव वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ हैरी ब्रूक्स, 27 टेस्ट मैचेस। हैरी ब्रूक्स बोल दिया मैंने। हैरी ब्रूकी, दैट्स हिज करेक्ट नेम। हैरी ब्रूकी हैज प्लेड 27 टेस्ट मैचेस सादी, he scored 9 tons. 5 of those 9 tons are 150 plus. Yes, I really love that record. That is and great. that tells you that if he gets to 100, there's a more than a 50% chance that he scores a daddy 100. बाकी यार इज नॉट द मोस्ट प्लीजिंग प्लेयर टू वॉच। थोड़ा इसका एंगल से बैट आता है, बेसबॉल टाइप प्लेयर है। मैं मजे की बात बताऊं, मैं ज्यादा वैसे बड़ा फैन नहीं हूं हैरी ब्रूक का। आई फील कि इसकी गेम में बहुत ज्यादा वीकनेसेस हैं यार। जब तक ये सेना में खेलेगा तब तक आपको प्रोलिफिक होता हुआ नजर आएगा। आई वांट टू सी हाउ वेल ही फेयर्स इन एशिया व्हेन द बॉल स्टार्ट्स टू टर्न। दैट इज हिज बिगेस्ट चैलेंज, और अभी तो काफी देर में खेल भी नहीं रही एशिया में, सो दैट्स अनदर थिंग। I will only call Harry Brook at that same or label him as generational when he conquers his spin demons. Because अगर बहुत ही कोई बड़ी glaring weakness, he's a great talent at this moment. Oh, and he could be great. He could conquer the spin weakness, right? And then he could go on to become one of the best batters that has ever played for England. He's also averaging about 58 or something in Test cricket, right? Harry Brook has consistently done well. These wickets suit him. And he will continue to do well. I feel like you'll see more scores from Harry Brook in the series. और वो punk number 5 पे आ जाती है ना बात फिर से. Brook, head, punt. Then you've got दूसरे मोल्ड में भी दो है, कमिंडू मेंडिस and South Shakil. A good time to be a number 5 batter in Test cricket, I would say. अच्छा prolific time चल। और कौन है? और कोई नहीं। यार मुझे टीमें बताओ तो मैं बताता हूँ। बेडिंगम। न्यूजीलैंड में कौन है 5 पे? मिचेल है? मिचेल ही है ना? हाँ मिचेल है। रचिन 4 पे है। Pretty sure मिचेल है। He is alright as well. 42 की एवरेज उसकी भी। सही जा रहा है। और न्यूजीलैंड में भी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलती हैं, तो उनकी एवरेजेस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बैटर्स की एवरेजेस को ना थोड़ा एक फर्क लेंस से देखना पड़ जाता है। एंड इंग्लैंड पे पड़ जाता था, मगर अब तो फ्लैट। अच्छा, ये बाय द वे डिमेरिट पॉइंट्स क्यों नहीं मिलने चाहिए इसको? मिलने चाहिए बस। फ्लैट है, काफी ज्यादा फ्लैट था ये। लेकिन खैर ये अगर मुल्तान होता तो पीछे पड़ जाते यार। ब्रो पीछे पड़े, रिजल्ट तो मुल्तान और पिंडी में नहीं आए भाई। वो पीछे पड़ जाते हैं। यही स्पिन ट्रैक मिल रहा हो इंडिया में तो डिमेरिट है यार। ये वाला सबसे गंदा ट्रैक। आई रियली हेट flat deck summer, or I know India did really well and they exploited the new ball really well, but still you want to see a more even contest between bat and ball. This was a bit of a like बीच में का दिल नहीं चला। वो शुरू में मुझे लगता है बचा जाएंगे उनको, जो बॉल घूम रही थी ना थोड़ी, वो शायद बचा जाए ये पॉइंट, वरना तो बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ, और वो भी ड्यूक्स बॉल पे भी कुछ लोग कह रहे थे not throwing shade or taking anything away from India. I think they were brilliant. It's just that 336 runs से अगर आप जीत रहे हो ना, you have absolutely annihilated the opposition team. You have snorted them, inhaled them. It's just that के लेकिन फिर then again बहराम, अगर इंडिया के बॉलर्स ये कर सकते हैं तो इंग्लैंड के नहीं किए ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के लिए सबसे मेजर कॉज फॉर कंसर्न ही उनका बॉलिंग अटैक। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी जस्ट सेइंग राइट नाउ। ये हमने पहले टेस्ट से ही बोला था कि यार स्टोक्स आपका अगर बेस्ट बॉलर हो तो ये थोड़ा मसला है। और यहाँ पे तो बैश इज योर मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, एंड बैश को तो आप टीम से निकाल रहे हैं। ठीक है, अगली टीम बना लेते हैं, फिर अगली टीम में बना लो। चलो लॉर्ड्स पे आई फील लाइक यू विल गेट अ बेटर कॉन्टेस्ट, राइट? आई थिंक इन इंडिया फेवरेट्स। I think India should just make one change. Bring in Bumrah for Prasid. अच्छा, so you're नहीं, Reddy भी है। Reddy भी है ना? But I'd stick with him for one more test. I won't change. They will go for a deeper batting lineup, तो Washington तो खेलेगा। I think यही रखो बस, Bumrah comes in for Prasid, बाकी fit है। मैं वैसे ले आऊँ वॉशिंगटन की जगह कुलदीप को। नहीं, मगर अब आपको शायद लंबी बैटिंग चाहिए। हाँ चाहिए। लॉर्ड्स में आई डोंट थिंक कुलदीप इतना इफेक्टिव भी होगा। I think Nitish stays for you. Nitish stays for me in this test. चलो देखते हैं नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर सकते हैं। I don't mind that. बुमराह तो आएगा ही आएगा वापस, और प्रासिद कृष्णा has to be the guy who leads. प्रासिद कृष्णा बेचारा पिट रहा है काफी। ओह अच्छा खासा पिट है। उसको टारगेट करते हैं वो लोग। क्या 23 रन्स मारे थे, 22 मारे थे। जेमी स्मिथ ने एक वाइड थी, उसमें भी मतलब he was going at above 6 per over यार। अच्छा, वैसे some plans were really awful by both teams. They peppered the short stuff जो पड़ी जा रही है उनको। इंडिया भी यार नहीं छोड़ रहा था शॉर्ट बॉल को, इंग्लैंड ने भी बीच में नहीं छोड़ा शॉर्ट बॉल को। जॉश टंग ने गिल को कोई लगातार 4 शॉर्ट बॉल लेकर नहीं, और चौके मार रहा था। वो पीछे हट के मारे, वो आगे हट के बस चौके मार रहे उसे। तो मुझे समझ नहीं आया यार, लाइक उतने प्लान्स मुझे समझ नहीं आए। एक जडेजा की विकेट ले ली थी शॉर्ट बॉल से टंग ने, उसके बाद उसने शॉर्ट बॉल ही करी। Look at the wickets that India got. They're all in the good health region, right? Apart from the full end deliveries से सिराज ने जो टेल वाइप आउट की है, वो जरा फर्क सीन बन जाता है। LBs। अच्छा खैर, नेक्स्ट टेस्ट में मैं तो इंडिया की एक ही चेंज रखूं, तुम?
ठीक हूं मैं, आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि बुमराह चाहिए. बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज थोड़ी आपकी बॉलिंग अब फिट I लगी. think they could take 20 wickets. हाँ, amongst इजी each other. इजी इजी. Yeah, और एक बुमराह ही होता वही ले जाता. लेकिन अब फिट लग रहा है ना, सीन फिट लग रहा है इनका. I mean, look, मैं फिर भी थोड़ा सा आई एम लीनिंग टुवर्ड्स कुलदीप फॉर वॉशिंगटन, बिकॉज फिर तो आप बिल्कुल ही खा जाओ इंग्लैंड को, बिकॉज अगर तो आखिरी इनिंग्स में, फोर्थ इनिंग्स में कुछ हल्की फुल्की परचेस मिली, कुलदीप विल यूज इट. जडेजा ऑब्वियसली प्लेस, वो तो so वो तो नहीं जा सकता. मेरे लिए तो जडेजा 5 के 5 टेस्ट खेल रहा था फ्रॉम द गेट को, बिकॉज आई डू डीम हिम दैट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. आई थिंक मेरे लिए एक ही चेंज है. यार करुण नायर बेचारा, देखो 3 पे क्या कर सकते हैं. अब अगले मैच में 100 आ रहा है करुण नायर का, मैंने कह दिया यहाँ पे. मुझे लगता है बैश कुछ करेगा. बैश देखते हैं खेलता भी है कि नहीं. इंग्लैंड की टीम की जब तक बात है, हमने बातें कर दी है ना, अब करेगा वो. आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली दैट वन लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट बोथ ऑफ क्रॉली एंड पोप आर गेटिंग. नहीं, आई डोंट थिंक दोनों को एक साथ निकालेंगे वो. नहीं निकाल सकते ना. अच्छा हाँ, तू भी सही कह रहा है. बेथल मुझे लग रहा है आ जाएगा टीम में ब्रो. निकालो फिर पोप को निकालो. एटकिंसन भी आएगा टीम में. एटकिंसन तो आ रहा है. एटकिंसन आ रहा है और प्रॉब्ली जॉश टंग. यार मैं तो बैश को खिलाऊं ही मत. फिर आई वुड प्ले बेथल एट 3 एंड प्ले अनदर सीमर नीचे. तो आई एम नॉट इवन जोकिंग. पोप को नीचे लेके आओ. पोप निकाल दिए मैंने. बैश की जगह तुम ले, पोप की जगह. हाँ ओके, वो बेथल आया और बैश की जगह गस. सीमर ला रहा हूं. गस एटकिंसन चलो दे दो. सो यू आर गोइंग विद गस, कार्स, वोक्स एंड टंग. No, I'm not playing both Cars and Tongue. Then who comes in? I want Sam Cook at Lords. Sam Cook. Yes, yes. I think कि वो wobble seam specialist है. Lords पे I reckon आपको कुछ purchase मिलेगी. Slope भी होगी. Maybe you can, have another one of those kind of bowlers, especially when you're playing Gus and Cars. And Stokes भी तो है. Stokes is quicker than your Sam Cooks and Vokes, right? Gus आ गया, Cars आ गया, Cook आ गया, Vokes आ गया, and Stokes आ गया. और Bethel. ब्रो मुझे लगता है नहीं करेंगे ये. एक तो ओवररेट का प्रॉब्लम हो जाना, 5 पेसर खिला. और गस एटकिंसन हैज अ टेस्ट डन. ही इज ऑन द लॉर्ड्स पे वैसे ही कमाल है उसका रिकॉर्ड. गस तो खेल रहा है. गस इज ऑन मल्टीपल ऑनर्स बोर्ड्स बाय द वे. ही हैज अ टन एट लॉर्ड्स, ही हैज अ फाइफर, ही हैज अ टेनफर. यार और कोई स्पिनर भी नहीं है ना. नहीं है ना, है ही उनको ले आता लियम बड़ा. डॉसन ही एक और दिमाग में ना. वो उनके स्क्वाड में भी नहीं है ना. पार्किंसन इज गॉन और वैसे ही स्पिनर खेलते ही गए आप. रेहान भी बैटिंग कर रहा है आजकल यार. रेहान 3 सेंचुरी, 3 शतक उसने भी जड़ दी. वो 7 more to go. आदिल रशीद का मैच करने के लिए. Those are the only 2 names in fact viable options. और लीच का मुझे नहीं पता क्या चल रहा सीन. I don't know bro. I'll just bring in Gus and Sam Cook for Tang and Cars. दोनों को निकालो फिर. कट दो फिर दोनों को. और फिर बाकी बेथल ने भी आना है. नहीं, बेथल को तो आप पोप की जगह ला सकते हो ना. You're sacrificing your spinner but you're getting a false number 3. और अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा false number 3. So Cam Threem ने भी by the way 50 मारी है. 52 कर दिए उसने. और मल्टर तो शायद अभी लंच के बाद 400 ही ठोकते हैं. Who's to say what happens over there? अच्छा खैर. So yeah, that would be my team for England. Similar-ish. फाइनल प्रेडिक्शंस दे दे क्या हो रहा है नेक्स्ट टेस्ट मैच. इंडिया जीत रहा है. इंडिया, आई थिंक इंग्लैंड. और पता है आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. मेरी प्रेडिक्शन एज बैट्समैन के लिए इंग्लैंड थी. तो दे हैव सरप्राइज्ड मी ऑलरेडी. जो कॉन्फिडेंस मिला होगा ना सारी टीम को कि यार बुमराह के बगैर ठोक ही दी हमने. मुझे अभी फीलिंग आ रही है इंग्लैंड जीत रहा है. अच्छा, अब तो भी उल्टे जा रहे हो. मैं पहले से ही उल्टा जा रहा हूं. अब मैं इंडिया बोल रहा हूं. आई थिंक अनलेस एंड अंटिल इंग्लैंड सॉर्ट आउट देयर बॉलिंग सीरीज इंडिया. आई थिंक गस बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब देखो ना पहला मैच जो इंग्लैंड जीती भी है उसमें भी बॉलिंग अच्छी है. लेकिन हम गस को इस तरह रेट करें पता नहीं क्या ही आ रहा है. गस का ये है कि ही हैड अ फैंटास्टिक समर लास्ट ईयर. लेकिन गस इन से तो बेहतर है. आई वाज देयर फॉर हिज डेब्यू. हिज डेब्यू इज जिमीज लास्ट गेम इजंट इट? या. अच्छा खैर ये ब्रो फिर चले. हाँ, और तो मेरे नहीं ख्याल से शादी कोई बातें रह गई करने वाली. और अब आपको काफी ज्यादा कंटेंट आगे मिल रहा है. चाय मंगवाएंगे, फ्राइज मंगवाएंगे, मल्डर का 400 देखेंगे. अब नहीं हो रहा. अब नहीं हो रहा. अब नहीं I've हो jinxed him. हाँ. Damn. अब तो इन्हीं को पता चलेगा हुआ कि नहीं हुआ. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम, मुझे माहिन, नोमी भी है इधर. सबको हर जगह फॉलो करें. सारे नोमियों को. नुमान चौधरी अपना नोमी और डॉक्टर नुमान ने और भी किसी नोमान को जाते हैं उसको भी कर दे. नोमी पाइन. उनको भी फॉलो बेस्ट वाले नोमी तो भूल गए. नोमी पाइन तो लेजेंड है. और एज साथ सेड लॉट्स ऑफ कंटेंट प्लान फॉर गाइस. और भी ड्राफ्ट्स आ रहे हैं और भी मजे की चीजें आ रही हैं. एक नॉस्टैल्जिया पॉड भी करेंगे हम लोग. सब कुछ रिवील कर देना तो फायदा क्या. हमारी बूथियां पसंद आई हो तो आप लोग हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, पॉडकास्ट एडिक्ट, कास्ट बॉक्स और जहां जाए हैं हम यार जाके सुन लो. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बॉय.